Good morning, everyone. Yes, today we are going to continue with acceptance. Before that, I would just like to share my screen. Just wait for a while. Yes, sorry. Yes, today we are going to continue with our next topic, that is acceptance. So, acceptance means what? First, we should understand that, and then we should proceed further. So acceptance. So definition of acceptance is given in section 2 clause B. Section 2 clause B, acceptance, says acceptance means when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto. That is, when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, that is, जिसको प्रपोजल दिया गया है, अगर वो व्यक्ति अपनी असेंट देता है, दैट इज़ अपनी परमिशन देता है, एग्री करता है आपके प्रपोजल से, तो हम ऐसा कंसिडर करेंगे दैट द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड. एंड व्हेन द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड देन इट बिकम्स प्रॉमिस. जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट होता है वैसे ही वो प्रॉमिस बन जाता है. सो सेक्शन 2 clause B define acceptance as when the person to whom the proposal signifies his assent thereto, to whom the proposal is made, when that person signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. And when it is accepted, then it becomes a promise. फिर वो promise बन जाएगा. Further, section 2 clause C says the person making the proposal is called the promiser. वो person जो proposal को दे रहा है उसे हम promiser कहते हैं. And the person who is accepting the proposal is called as a promisee. और जो proposal को accept कर रहा है उसे हम promisee कहेंगे. Okay? So we have done with the two definitions, that is section 2 clause B, acceptance, section 2 clause C, promisor and promisee. Next concept here is about counter offer. Before that, let's have one example of your acceptance and proposal. See, for example, if A offers to sell his house to B for rupees 50,000. Simple. A offers to sell his house to B for rupees 50,000 and B accepted this offer to purchase the house for the same amount, that is rupees 50,000 only. तो जो सेंटेंस की फर्स्ट पार्ट है, that is A offers to sell his house to B for rupees 50,000 is a proposal, and when B accepts the offer to purchase the same house for the same amount, that is 50,000 only, then it becomes acceptance. Okay, so this is one of the example of simple proposal and acceptance. Now come to the next one, that is we have a counter offer. What is meaning of a counter offer? So counter offer means a written offer. That's you are offering something to proposee, you are offering something to promisee, but he is not accepting this your offer as it is. He is changing in something, making it like a new contract, new offer, and then making it
ही इज़ चेंजिंग इट, डूइंग सम वेरिएशंस इन दैट, आफ्टर दैट वो आपको वो रिटर्न ऑफर कर रहे हैं, तो वो हमारा काउंटर ऑफर होता है ना। इन ऑर्डर टू, अभी हमने पढ़ा दैट इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एनी प्रपोजल इनटू प्रॉमिस, किसी भी प्रपोजल को अगर आपको प्रॉमिस में बदलना है तो एक्सेप्टेंस तो होनी ही चाहिए, बट जो एक्सेप्टेंस होती है इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, दैट इज अनकंडीशनल। एक्सेप्टेंस जो होती है वो अनकंडीशनल होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप आपके एक्सेप्टेंस में, जो भी आपका ऑफ़र का एक्सेप्टेंस है, अगर आप उसमें कोई न्यू कंडीशंस इंट्रोड्यूस करते हो या कोई वेरिएशंस करते हो, दैट इज़ चेंजेस करते हो, तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेंस एट ऑल, क्योंकि फिर आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आपने चेंजेस किए, वेरिएशंस किए, मीन समवेयर यू आर इशूइंग न्यू ऑफर टू द रियल ओनर, ओरिजिनल ओनर ओनली। ओके, तो जो ओरिजिनल प्रपोजर था जिसने आपको फर्स्ट ऑफर प्रपोज किया था, उसमें वेरिएशंस करके, चेंजेस करके हमने क्या किया, ओरिजिनल ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। ओके, सो एक्सेप्टेंस विथ वेरिएशंस किया, यानी एक्सेप्ट तो किया लेकिन वेरिएशंस के साथ। तो जब आप एक्सेप्टेंस को वेरिएशंस के साथ एक्सेप्ट करते हो तो उसे हम काउंटर ऑफर कहते हैं। एंड there is no contract unless and until this counter offer is accepted by the original proposal। तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है जब तक आपका ये काउंटर ऑफर ओरिजिनल प्रपोजर एक्सेप्ट करता है। जब तक वो नहीं एक्सेप्ट करेगा तब तक आपके बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। ओके, सो काउंटर प्रपोजल is a rejection of the original proposal and making a new proposal। तो ये counter proposal, या फिर you can say, you can use the word counter offer हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल देखते हैं जो प्रीवियसली हमने देखा, दैट इज ए ऑफर्स टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर ₹50,000। A offers to sell his house to B for ₹50,000. First line is proposal. A is making proposal to B कि उसका घर 50,000 में खरीद लो, and B writes to that he is ready to buy the house but for ₹40,000। It means somewhere B ने क्या किया, वेरिएशंस किए, चेंजेस किया कंडीशन में। ए ने कंडीशंस लगाए थे कि आप मेरा घर खरीद लो 50,000। बी का ऐसा कहना है कि मैं आपका घर खरीदूंगा 40,000 में। इट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, एक्सेप्टेंस में वेरिएशंस आ गए। सो ये जो बी का कहना है कि मैं 40,000 में घर को खरीदूंगा, दिस इज काउंटर ऑफर, दैट इज काउंटर प्रपोजल। अब ये बी किसको दे रहा है, ए को, यानी कि ओरिजिनल प्रपोजल को। अब जो ओरिजिनल प्रपोजर है दैट इज ए, नाउ ही इज गोइंग टू एक्सेप्ट कि वो 40,000 में उसे अपना घर बेचना है या नहीं बेचना है। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द काउंटर ऑफर्स। ओके, डन विथ इट। तो जैसे प्रपोजल होता है, ऑफर होता है, वैसे एक काउंटर ऑफर का भी कॉन्सेप्ट है जो अभी अभी हमने देखा। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू विद द essentialities of a valid acceptance, that is आपका जो एक्सेप्टेंस है उसको वैलिड बनाने के लिए हमको किन कंडीशंस की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ेगा हमें किसी वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए। ओके, सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज मोड और मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस। सो मोड और मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस सेज, दैट इज मोड एंड मैनर, किस तरीके से और कैसे हम एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करेंगे। सो ऑलरेडी प्रीवियसली बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ एक्सेप्टेंस में बी मेड बाय द वर्ड्स और बाय कंडक्ट। आपका जो एक्सेप्टेंस है वो हम वर्ड्स के ज़रिए या फिर कंडक्ट के ज़रिए, दैट इज़ बिहेवियर्स के ज़रिए, इम्प्लाइड मैनर में, या फिर बाय वर्ड्स और इन अ रिटन फॉर्म दैट इज़ एक्सप्रेस मैनर में, या फिर इम्प्लाइड वे में। बोथ द वेज आर परमिशेबल, दोनों भी वेज के
हेल्प के थ्रू आप आपके एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर सकते हो. बट इफ़ ही डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी स्पेसिफिक मोड, देन अगर ऐसा हो कि कोई भी स्पेसिफिक मोड प्रिस्क्राइब्ड ही नहीं किया है, तो फिर क्या करेंगे हम? तो फिर रीजनेबल मोड ऑफ एक्सेप्टेंस को लेंगे. नाउ रीजनेबल मोड ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होगा? इट मीन्स जो भी पार्टी हु आर इंटेंडेड टू परफॉर्म दिस कॉन्ट्रैक्ट, whoever are the parties, if they are intended to perform the contract in ordinary course of a trade or business में जो मैनर यूज़ होता होगा हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे. तो सिंपली अगर हम बोले तो मोड एंड मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस के लिए फर्स्ट रिटन फॉर्म में, ओरल फॉर्म में दैट इज़ एक्सप्रेस वे, बिहेवियर कंडक्ट दैट इज़ एम्प्लाइड वे, या फिर प्रिस्क्राइब्ड नहीं है कौन से मैनर में करना है तो रीजनेबल मोड ऑफ एक्सेप्टेंस लिया जाएगा, जो कि सेम कोर्स ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस में जो भी टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर कर रहे हो, जनरली उस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो तरीका, जो मोड, जो मैनर यूज़ किया जाता होगा हम भी उसी को यूज़ कर लेंगे. अगर कोई स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो इफ़ डज नॉट हैव एनी प्रिस्क्राइब्ड मोड और मैनर, देन तो ये हमारा मोड एंड मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस हो गया कि किस तरीके से हम एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर सकते हैं. दैट इज़ प्रपोजल को अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो आप कैसे एक्सेप्ट करोगे. ओके, प्रिस्क्राइब्ड मोड ऑफ एक्सेप्टेंस जो है, अभी हमने डिस्कस किया कि प्रिस्क्राइब्ड मोड ऑफ एक्सेप्टेंस अगर नहीं है, मतलब प्रपोजर ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि वो रिटन फॉर्म में ही एग्रीमेंट करना चाहता है या ओरल फॉर्म में करेंगे तो चलेगा, या फिर हमने यूं ही डिस्कस कर लिया तो चलेगा, मतलब कौन से फॉर्म में हमको एक्सेप्ट करना है. अगर ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो हमने डिस्कस किया कि हम रीजनेबल मोड ऑफ एक्सेप्टेंस लेंगे. लेकिन अगर प्रिस्क्राइब्ड किया है तो दैट इज़ जो प्रपोजर है ऑलरेडी उसने प्रिस्क्राइब्ड किया है मैनर in which you are going to accept the offer. So अगर prescribed already manner किया हुआ है तो फिर जो acceptor है, that is जो proposee है, उसे accept करना होगा जो offerer है in such a manner only, in such a mode only, which is prescribed by the proposer. अगर आप प्रपोजर के द्वारा दिए गए मोड से, अगर आप प्रपोजर के द्वारा दिए गए मोड को एग्री नहीं करते हो या आप उस तरीके से अपने एक्सेप्टेंस को या अपनी कंसेंट को नहीं देते हो तो फिर वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी. और जैसे ही प्रपोजर को पता चलता है कि आपने कंसेंट किसी दूसरे मोड में दिया है तो प्रपोजर आपको इंसिस्ट कर सकता है कि आप आपके एक्सेप्टेंस को सेम प्रिस्क्राइब्ड मैनर में मेंशन कीजिए जो ऑलरेडी पहले से प्रिस्क्राइब्ड किया हुआ है. तो प्रिस्क्राइब्ड मोड ऑफ एक्सेप्टेंस इफ़ इट्स मेंशन, तो फिर प्रपोजर आपको इंसिस्ट कर सकता है कि प्रपोजल शैल बी एक्सेप्टेड इन सच अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर ओनली एंड नॉट अदरवाइज. हाँ, इफ़ मैनर इज़ ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड बट जो ऑफरी है उसने एक्सेप्ट कर लिया प्रिस्क्राइब्ड मैनर के अलावा और ऑफरर ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया या कोई करेक्शन नहीं किया या फिर इंसिस्ट नहीं किया तो फिर वही तरीका मान लिया जाएगा. फिर भी हम मान लेंगे कि इन द मैनर इन विच ऑफरी हैज़ कंसेंटेड, सेम मैनर को हम कंसिडर करेंगे कि एक्सेप्टेंस हो गई है. These are the some rules related to mode and manner of acceptance. Yes. Next point we have acceptance must be communicated. ये सेम पॉइंट हमारा ऑफर में भी था, दैट इज़ ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड. तो जब हम कहते हैं कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, इट्स अ सिंपल, दैट इज़ एक्सेप्टेंस. आप किसी के ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो ये बात उसे बतानी तो पड़ेगी ना. तो जब तक हम उसको कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा कि आपने ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है. दैट्स वाई एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेट होनी चाहिए. सो एक्सेप्टेंस विच इज़
made by the acceptor is required to be communicated to the proposer. यानी जो भी आपका एक्सेप्टेंस है उसे आपको प्रपोजर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा. हम ऐसा भी कह सकते हैं दैट इफ़ देयर इज़ नो कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो देयर इज़ नो एक्सेप्टेंस एट ऑल. कम्युनिकेशन ही नहीं है तो फिर एक्सेप्टेंस कैसे कंसिडर कर लेंगे? इफ़ देयर इज़ नो कम्युनिकेशन इट मीन्स देयर इज़ नो acceptance at all. Okay, there is one case law related to this, that is Borin versus Railway Company. इस केस में क्या हुआ था? बॉर्डन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी. इस केस में हुआ यूँ था कि एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ अ कोल, ड्राफ्ट एग्रीमेंट रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ अ कोल सेंड किया गया था मैनेजर ऑफ रेलवे कंपनी को, उसके एक्सेप्टेंस के लिए. रेलवे कंपनी के मैनेजर को एक एग्रीमेंट भेजा गया उसके एक्सेप्टेंस के लिए. रेलवे कंपनी के मैनेजर ने लेटर पे लिख तो दिया अप्रूव्ड, एप्लीकेशन अप्रूव्ड, दैट इज़ एक्सेप्टेंस दे दिया, एग्रीमेंट पे लिख दिया एप्लीकेशन अप्रूव्ड, मतलब एग्रीमेंट अप्रूव्ड कर लिया गया है. बट डॉक्यूमेंट वो मैनेजर भूल गया अपने ड्रॉवर में. यानी कि अप्रूवल ऑन पेपर तो मिल गई बट इस बात की इंफॉर्मेशन अभी भी जिन्होंने एग्रीमेंट, ड्राफ्ट एग्रीमेंट भेजा था अप्रूव कराने के लिए, उन्हें नहीं है. तो इस केस में इट वाज हेल्ड दैट देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट एज देयर वाज नो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज अप्रूवल ऑन पेपर भले ही दे दी गई हो बट अप्रूवल दैट इज़ एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन नहीं था प्रपोजल को. तो अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो फिर एक्सेप्टेंस भी नहीं है. बॉर्डन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी के केस में इस चीज़ को प्रूफ किया गया था. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट वी हैव silence does not amount to acceptance. Silence does not amount to acceptance. अगर आप चुप हो, आपको एक्सेप्ट करना है. अभी ऊपर हमने पढ़ा वी हैव अ वेरियस मोड्स और मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस, ओरल फॉर्म में, रिटन फॉर्म में, बिहेवियर से, गेस्चर से, कंडक्ट से. तो बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास एक्सेप्टेंस को बताने के लिए. बट अगर आप साइलेंट हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो, ना ही यस, ना ही नो, ना ही रिटन फॉर्म में, ना ही ओरल फॉर्म में, किसी भी तरीके से आप एक्सेप्टेंस भी नहीं दे रहे हो हमको, तो क्या कंसिडर करेगा प्रपोजल? तो सो साइलेंस डज नॉट अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस. एन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर कैन नॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम द साइलेंस ऑफ द एक्सेप्टर. इम्प्लाइडली नहीं माना जाएगा कि अगर एक्सेप्टर ने कुछ नहीं कहा इसका मतलब उससे ऑफ़र एक्सेप्टेड है. अगर ऑफ़र एक्सेप्टेड नहीं होता तो वो बोलता ये एक्सेप्टेड नहीं है. इट इज़ नॉट लाइक दैट. आप साइलेंस हो तो हम उसको एक्सेप्टेंस मानेंगे ही नहीं. इफ़ यू आर एग्री विद आवर ऑफ़र तो यू हैव टू कम्युनिकेट इट टू अस. वो आपको हमें बताना ही पड़ेगा. अकॉर्डिंग टू एक्सेप्टेंस के जो रूल्स हैं, इट एक्सेप्टेंस टू बी complete must be communicated by the words or conduct of the acceptor. एक्सेप्टर के वर्ड्स और कंडक्ट से पता चलना चाहिए कि उसे ये प्रपोजल एक्सेप्ट है. मेंटल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस एट ऑल. अगर आपकी दिमाग की स्थिति ठीक नहीं है और फिर भी आप एक्सेप्टेंस कर रहे हो तो उसे एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा. सिंपली साइलेंस डज नॉट अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस. अभी ऊपर हमने पढ़ा एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड. तो एक्सेप्टेंस आपको बताना ही पड़ेगा ना. अगर आप चुप रहोगे तो आप बताओगे कैसे? अब अगर आप बताओगे नहीं, दैट इज़ कम्युनिकेट नहीं करोगे एक्सेप्टेंस को, तो भी आपका एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगा. और आपने अगर साइलेंस रखी है, दैट इज़ ओरल, राइटिंग या फिर किसी और फॉर्म में अगर एक्सेप्टेंस के बारे में नहीं बताया तो भी वो क्या हो जाएगा? नो यूज़ ऑफ इट. सो साइलेंस डज नॉट अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस. साइलेंस रहना मतलब हम कंसिडर करेंगे
कि एक्सेप्टेंस आपने नहीं दी है. नेक्स्ट वी हैव अ acceptance of the proposal is acceptance of all the terms of the offer. प्रपोजल का जो एक्सेप्टेंस है वो हम ऐसा मानेंगे कि आपने अगर किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है, इट मीन्स उससे रिलेटेड सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को भी आपने एक्सेप्ट किया है. ऐसा नहीं है कि आपने प्रपोजल तो एक्सेप्ट कर दिया, रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस में से आपको 2 मंजूर है, 2 मंजूर नहीं है. इट इज़ नॉट लाइक दैट. अगर आपने एक्सेप्ट किया है प्रपोजल को, तो इट इज़ एक्सेप्टेड दैट कि यू हैव एक्सेप्टेड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, ऑल द ऑफर्स, जो भी है पूरे के पूरे ऑफ़र को कम्प्लीटली विथ ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस आपने एक्सेप्ट किया है. सो समटाइम्स इट हैपेंस, कभी कभी ऐसा होता है कि जो एक्सेप्टेड होता है वो इग्नोर कर देता है सम ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफर एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, बट actually he is bound by all the terms of the offer when he is accepting an offer. आप अगर ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस से बाउंड हो. यू आर बाउंड, भले ही आप मानो या ना मानो, बाय लॉ यू आर बाउंड दैट यू हैव टू फुलफिल इट. नहीं फुलफिल किया तो एक्सेप्टेंस कंसिडर किया ही नहीं जाएगा. नेक्स्ट, acceptance must be by certain person. that is, ये जो acceptance है ये certain person के द्वारा ही होना चाहिए. Actually we have a one case law in our point number 4 also, वो भी देख लेते हैं. तो केस है मक्लिकैन वर्सेस कंपेनियन. यहाँ पे क्या हुआ था, प्लेंटिफ ने परचेज किया था डिफेंडेंट से एक कंपनी का टिकट. Plaintiff purchased from the defendant company a ticket travel by steamer which was in French language. एक स्टीमर से ट्रैवल करने के लिए फ्रेंच लैंग्वेज में उन्होंने परचेज किया था टिकट, जहाँ पे टर्म्स क्या थे, टर्म्स एंड कंडीशंस स्टेड ऑन द टिकट. टिकट पे लिखा था क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं. also it was also in a French language only. तो फिर क्या हुआ, जब ट्रैवलिंग शुरू हुई, द प्लेंटिफ जब ट्रैवलिंग शुरू हुई तो वेसल से जो प्लेंटिफ का बैगेज था वो डैमेज हो गया. तो जब प्लेंटिफ का बैगेज डैमेज हो गया, दैट इज़ लॉस्ट हो गया, तो प्लेंटिफ ने क्या कहा, स्यू द डिफेंडेंट कंपनी फॉर द डैमेजेस. प्लेंटिफ ने स्यू किया डिफेंडेंट पे डैमेजेस के लिए. बट इट वॉज हेल्ड दैट कि जो प्लेंटिफ है ही हैड रीजनेबल नोटिस ऑफ द कंडीशन. प्लेंटिफ को पहले से टिकट लेते समय ही जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो ऑलरेडी मेंशन की हुई थी. फिर भी अगर उसका सामान गुम गया तो फिर ऑफरर रिस्पॉन्सिबल नहीं है. एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, अगर आपने टिकट खरीदी है और आप उस स्टीमर पे बैठने के लिए रेडी हुए हो, इट मीन्स वहाँ के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आप उसको एग्री करते हो. आपने टिकट ले ली और उसके बाद बोलो अरे आपका ये रूल है वो रूल है, हमको तो फॉलो नहीं करना, या मुझे ये वाला रूल नहीं पसंद है, आप इन रूल्स को फॉलो ना करो तो मैं आपके स्टीमर में बैठूँ. ऐसा नहीं होगा ना. तो जब आपने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है तो यू हैव टू एक्सेप्ट ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशंस. तो आपको दूसरे भी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा. नेक्स्ट वी हैव अ एक्सेप्टेंस मस्ट बी बाय सर्टेन पर्सन. तो जो एक्सेप्टेंस है दैट इज़ एन ऑफर. देखो जो ऑफ़र देना होता है वो हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू दे सकते हैं. ऑफर रिवॉर्ड फॉर रेंडरिंग ऑफ अ सर्टेन सर्विसेज, पब्लिक एट लार्ज में दे सकते हैं. हमने लास्ट टाइम ही देखा था कि ऑफ़र देने के लिए या इनविटेशन टू ऑफ़र देने के लिए आप एडवर्टाइजमेंट भी दे सकते हो, पब्लिक एट लार्ज में इनवाइट भी कर सकते हो. सो लेकिन एक्सेप्ट कौन करेगा. मतलब ऑफ़र अगर आप पब्लिकली दे रहे हो, 10 लोगों को आपने ऑफ़र दिया कि भाई मेरा घर मैं 10,000 में बेच रहा हूँ, लेकिन उसे एक्सेप्ट तो कोई एक ही पर्सन करेगा ना. तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी बाय अ सर्टेन पर्सन ओनली. भले ही ऑफ़र जनरल क्यों ना है, ऑफ़र जनरल ऑफ़र क्यों ना है, बट कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस को क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, परफॉर्मेंस किसी इंडिविजुअल को करना होगा. सो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एज पर द ऑफर एंड नॉट बिफोर. यानी आपको इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देना होगा. सिंपल सी बात है. अगर एक्सेप्टेंस
मस्ट बी बाय सर्टेन पर्सन। अगर आप किसी को ऑफ़र देते हो एक्सेप्ट करने के लिए, तो आपका ऑफ़र पब्लिक एट लार्ज हो सकता है। जैसे आपने घर बेचने का ऑफ़र दिया 10,000 में, तो इट इज़ पब्लिक एट लार्ज, पूरे चौल को या फिर पूरे एरिया को या फिर पूरे सिटी को आपने ऑफ़र दिया है कि 10,000 में आप अपना घर बेच रहे हो। जो 10,000 देगा वो ले लेगा, बट लेने के लिए तो कोई एक ही होगा ना। दैट इज़ एक्सेप्टेंस मस्ट बी बाय अ सर्टेन पर्सन, जो एक्सेप्ट करेगा आपके प्रपोजल को और आपका घर परचेज कर लेगा। तो एक्सेप्टेंस जो है वो मस्ट बी बाय सर्टेन पर्सन होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव अ ऑफर। ऑफर लैप्स आफ्टर द लैप्स ऑफ अ रीजनेबल टाइम। अगर एक बार रीजनेबल टाइम ख़त्म हुआ तो हम ऐसा मानते हैं कि ऑफ़र भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ऑफ़र लैप्स आफ्टर द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द ऑफर लैप्स। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द ऑफर लैप्स, या फिर विड्रॉल लैप्स हो जाए और विड्रॉ हो जाए ऑफ़र, इससे पहले आपको एक्सेप्टेंस देनी होती है। अगर आप उसके पहले एक्सेप्टेंस नहीं देते हो और ऑफ़र विड्रॉ कर लिया गया है या फिर लैप्स हो गया है, सॉरी, ऑफ़र लैप्स आफ्टर द लैप्स ऑफ अ रीजनेबल टाइम। एक रीजनेबल टाइम के बाद आपका ऑफ़र लैप्स हो जाता है, तो ऑफ़र लैप्स होने के बाद आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या फिर ऑफ़र जो है वो विड्रॉन हो चुका है, ऑफरर ने ऑलरेडी ऑफ़र को विड्रॉ कर लिया सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम तक वेट करने के बाद, क्योंकि किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो भी क्या हो जाएगा, ऑफ़र लैप्स हो जाएगा। एक रीजनेबल टाइम के बाद ऑफ़र लैप्स हो जाता है। अब रीजनेबल टाइम क्या है, व्हाट इज़ रीजनेबल टाइम? रीजनेबल टाइम इट्स डिपेंड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ईच केस। इट्स लाइक इट्स केस टू केस, इट डिफर्स। अलग अलग केस में, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में रीजनेबल टाइम को हम डिफरेंट प्रिस्क्राइब करेंगे। सो रीजनेबल टाइम इज़ नॉट डिफाइंड ओवर हियर। यू पीपल जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट अगर ऑफर लैप्स हो जाएगा, सॉरी, अगर रीजनेबल टाइम लैप्स हुआ तो। लास्ट पॉइंट वी हैव अ एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द ऑफर इज विथड्रॉन और इज रिवोक्ड। एक रीजनेबल टाइम के बाद लैप्स तो हो ही जाएगा, लेकिन आप जो एक्सेप्टेंस दे रहे हो, अगर आप ऑफ़र के लैप्स होने के बाद दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं। दैट्स वाई एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द ऑफर इज़ विड्रॉन और इज़ रिवोक्ड। इससे पहले कि ऑफ़र को विड्रॉ या रिवोक कर लिया जाए, हमें अपना एक्सेप्टेंस दे देना चाहिए, बिकॉज वंस एक बार अगर वो विड्रॉ या रिवोक हो गया तो फिर हम कंसिडर करेंगे कि रिवोक हो गया ना, इट मीन्स देयर इज़ नो एक्सेप्टेंस एट ऑल। सो एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द ऑफर इज़ विड्रॉन और रिवोक। एक बार अगर ऑफ़र विड्रॉ और रिवोक का जो पॉइंट है उसके पहले ही आपको देना है, एक्सेप्टेंस देना है। नहीं तो एक बार विड्रॉ हो गया तो बात ही ख़त्म हो गई, या फिर रिवोक्ड हो गई तो भी बात ख़त्म हो गई। तो इन दोनों सिचुएशन में भी सॉरी, आप एक्सेप्टेंस को नहीं दे सकते हो। ऑफकोर्स अगर ऑफ़र विड्रॉन या रिवोक हो गया तो आप एक्सेप्टेंस दोगे ही कहाँ, जब ऑफ़र ही एग्जिस्ट नहीं करता था, तो हम वहाँ पे भी ऑफ़र नहीं दे सकते हैं। दीज आर द सम पॉइंट्स रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस, जहाँ पे हमने एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन देखा, प्रोमिसर कौन होता है, प्रोमिसी कौन होता है, काउंटर ऑफ़र क्या होता है, इंक्लूडिंग द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। वैलिड एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स को मिला के। ओके, विद दिस हमारा एक्सेप्टेंस वाला पॉइंट्स एंड्स ओवर हियर। एक्सेप्टेंस वाला पॉइंट्स भी यहाँ पे ख़त्म होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक शॉर्ट समरी रिवीजन भी लिया था, जिसमें हमने ओवरऑल देखा था कि क्या होता है हमारा प्रोमिसर, प्रोमिसी, ऑफर, ऑफरिंग, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉस कैसे बनते हैं, बेसिक इंट्रो एंड ऑल। Okay, so we are done with the acceptance. Yes, so come to the next topic, that is communication, acceptance and revocation of proposal.
दैट इज़ अगर किसी प्रपोजल का कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन कंसिडर करना है तो फिर वो कौन से सिचुएशन में और कैसे किया जाएगा. तो फॉर दिस वी हैव अ सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 जो आपको बताता है कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है और रिवोकेशन कब कंप्लीट होती है. तो सेक्शन 4 और सेक्शन 5 को हम देखेंगे. सेक्शन 4 सेज कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट्स. सेक्शन 4 का ऐसा कहना है कि कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. When it comes to the knowledge of a person to whom it is made. जैसे ही प्रपोजल का नॉलेज उस व्यक्ति को मिलता है जिसके लिए वो प्रपोजल बनाया गया है, वैसे ही हम कंसिडर करते हैं कि प्रपोजल की इंफॉर्मेशन मिल गई. इट मीन्स कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई. अभी प्रीवियस पॉइंट्स में हमने पढ़ा, ऑफर के पॉइंट में भी हमने पढ़ा था, दैट इज कम्युनिकेशन इज नेसेसरी. ऑफर के पॉइंट में भी हमने पढ़ा था कि कम्युनिकेशन इज नेसेसरी. जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं होगा. कम्युनिकेशन नहीं होगा तो प्रॉमिसी को पता ही कैसे चलेगा कि देयर इज़ एन ऑफर फॉर यू. और जैसे ही आप एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन नहीं देते हो ऑफरर को, उसे कैसे पता चलेगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है. बट कौन से सिचुएशन में हम कंसिडर करते हैं कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुकी है. सो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, इसके लिए सेक्शन 4 में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं, हम उसको देखेंगे. सो फर्स्ट पॉइंट सेज कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीटेड व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज़ मेड. जिसके लिए प्रपोजल बना है, जब उसे उसके बारे में नॉलेज मिलती है प्रपोजल के बारे में, तो सेक्शन 4 बिलीव्स की कम्युनिकेट हो चुका है. दैट इज़ कम्युनिकेशन हो गई है, आपको प्रपोजल की नॉलेज मिल गई है. ओके, सो ये तो कम्युनिकेशन हुआ प्रपोजल का. दैट इज़ प्रपोजल अगर आप दे रहे हो तो उसका कम्युनिकेशन कब कंसिडर किया जाएगा, जब नॉलेज मिलेगी किसको, पर्सन टू होम इट इज़ मेड, जिसके लिए बनाया गया है उसे जब नॉलेज मिलेगी तब. नाउ ये तो प्रपोजल का हो गया ना कम्युनिकेशन. एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन क्या होगा, कौन से सिचुएशन में हम एक्सेप्ट करेंगे कि एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेट हो चुकी है. तो अगेंस्ट द प्रपोजल, फर्स्ट पॉइंट दैट इज़ प्रपोजल के लिए, प्रपोजर के लिए एक्सेप्टेंस कब माना जाएगा, व्हेन इट इज़ पुट इन द कोर्स ऑफ अ ट्रांसमिशन टू हिम एज सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर. जैसे ही व्हेन इट इज़ पुट इन द कोर्स ऑफ अ ट्रांसमिशन, जैसे ही आप उसको ट्रांसमिशन के स्टेटस में लेके आते हो, तभी मान लिया जाएगा कि प्रपोजर को एक्सेप्टेंस की इंफॉर्मेशन मिल चुकी है. ट्रांसमिशन में मतलब जैसे कि अगर आप बाय पोस्ट भेज रहे हो तो आपने पोस्ट ऑफिस में जाके इंफॉर्मेशन पोस्ट कर दी है, या फिर आपने स्पीड पोस्ट कर दी है, या फिर आपने फैक्स कर दिया है. तो दीज आर द कोर्स ऑफ अ ट्रांसमिशन. तो जैसे ही व्हेन वी पुट इट इनटू द कोर्स ऑफ अ ट्रांसमिशन, तो हम कंसिडर करेंगे कि प्रपोजर को एक्सेप्टेंस मिल चुकी है. एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, एक्सेप्टर के अगेंस्ट में कब कंसिडर किया जाएगा, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर. एक्सेप्टर के लिए जैसे ही वो प्रपोजर की नॉलेज में वो बात आती है, वैसे ही हम मान लेंगे कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुकी है. नाउ नेक्स्ट इज द कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट. अभी जो पॉइंट्स हमने देखे वो तो एक्सेप्टेंस के लिए था कि अगर आपको किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट करना है तो ये कंडीशंस फॉलो करने पड़ेंगे. बट अगर जो कम्युनिकेशन है वो रिवोकेशन का कब पूरा होगा, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, उसके लिए कब पूरा होगा, अगेन सेम व्हेन इट इज़ पुट इनटू द कोर्स ऑफ अ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू होम इट इज़ मेड, जिसके लिए वो बना है, जब हम उसके लिए कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन में डाल देते हैं. दैट इज़ आपने बाय पोस्ट डाल दिया है, या रेलवे को दिया है, या फिर पोस्ट ऑफिस में डाल दिया है, तो फिर हम कंसिडर करेंगे कि
कम्युनिकेशन हो चुकी है। एज अगेंस्ट द पर्सन टू होम इट इज़ मेड व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज। अगर अपोजिट पर्सन के लिए बात करें तो दैट इज़ अगेंस्ट द पर्सन टू होम इट इज़ मेड, तो हम कहेंगे व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज। जब उसके नॉलेज में आ जाएगा तब हम मान लेंगे कि कम्युनिकेशन जो है वो रिवोक हो चुका है। विद दिस रिवोकेशन ऑफ कम्युनिकेशन था पॉइंट नंबर 4 हमारा। पॉइंट नंबर 5 है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। बिफोर दैट पॉइंट नंबर 4 कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट्स का कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल ए प्रपोजेस बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू बी एट अ सर्टेन प्राइस। ए ने प्रपोज किया लेटर से टू सेल हिज हाउस टू बी एट अ सर्टेन प्राइस। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये जो कम्युनिकेशन है प्रपोजल का कब कंप्लीट होगा। ए प्रपोजेस बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू बी इन अ सर्टेन प्राइस। तो यहाँ पे प्रपोजल कंप्लीट होगा जब इंफॉर्मेशन मिलेगी बी को, दैट इज़ व्हेन बी रिसीव्स द लेटर। जैसे ही बी को लेटर रिसीव होता है हम मान लेंगे कि बी को कम्युनिकेट हो चुका है। अब बी का जो एक्सेप्टेंस है ए के प्रपोजल को लेके, बी ने एक्सेप्ट किया ए का प्रपोजल बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट, पोस्ट से लेटर भेज के, तो ये जो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है वो कंप्लीट हो गया। यानी जब ए ने बी को प्रपोजल दिया था तो बी के पास लेटर आने के बाद कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ था, बट जब बी ए को अपने एक्सेप्टेंस की बात बता रहा है तो जैसे ही उसने लेटर को कोर्स इन ट्रांजिट में डाला वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया जाएगा कि एक्सेप्टेंस हो चुकी है। दैट इज बी एक्सेप्ट्स द इज प्रपोजल by a letter sent by the post. So communication of the acceptance is also completed over here. As against A की बात करें तो A के लिए कब पूरा हुआ, जैसे ही B ने लेटर पोस्ट किया, और B के लिए कब पूरा होगा, when the letter is received by A, जैसे ही A लेटर को रिसीव करे। सेम सिस्टम हम फॉलो करते हैं रिवोकेशन के लिए। देयर इज अ वन मोर एग्जांपल रिलेटेड टू रिवोकेशन। इफ ए रिवोक हिज प्रपोजल बाय टेलीग्राम, ठीक है, ए अपना प्रपोजल टेलीग्राम से रिवोक करता है, तो हम ऐसा मानेंगे कि रिवोकेशन कंप्लीट हो गया है ए के लिए व्हेन द टेलीग्राम इज डिस्पैच। जैसे ही टेलीग्राम उसने डिस्पैच किया उसे टाइम से हम मान लेंगे कि रिवोकेशन हो चुका है। इट इज़ कंप्लीट एज अगेंस्ट बी। बी के लिए कब होगा, जब बी को मिलेगा, ऑफकोर्स जब बी को मिलेगा तभी उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट द रिवोकेशन। लेकिन ए के लिए लेटर डिस्पैच किया तो उसके लिए रिवोकेशन हो जाएगा। सो बी रिवोक्स हिज एक्सेप्टेंस बाय टेलीग्राम। बी जो है वो एक्सेप्टेंस को टेलीग्राम से रिवोक कर रहा है। बी इज रिवोकिंग इज कंप्लीट। बी का जो रिवोकिंग है वो कब कंप्लीट होगा, अगेंस्ट बी, जब टेलीग्राम डिस्पैच हो जाएगा, और ए के अगेंस्ट में जब वो उस तक पहुंच जाएगा तो। सो दीज आर द मेथड्स रिलेटेड टू रिवोकेशन और एक्सेप्टेंस। इसके बाद सेक्शन 5 भी है हमारा, दैट इज़ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। जो प्रपोजल है इट मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम, मतलब हम कभी भी रिवोकेशन प्रपोजल का कर सकते हैं, बट दैट इज़ before the communication of its acceptance is complete as against the proposer, but not afterwards. Before the communication of its acceptance, जब तक ये acceptance का communication जो है वो complete ना हो जाए against the proposer, तब तक हम क्या करेंगे, revoke नहीं करेंगे, but not afterwards. तब तक revoke कर सकते हैं लेकिन बाद में revoke नहीं कर सकते, तो हमको उतने टाइम के ड्यूरेशन में ही निकाल लेना पड़ेगा। एंड एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन। द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। यानी जो एक्सेप्टेंस है ये कभी भी किसी भी समय रिवोक किया जा सकता है अगर कम्युनिकेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो। नाउ वी हैव सम एग्जांपल्स फॉर दिस। इट्स लाइक
A proposes by letter sent by post to sell his house to B. B accept the proposal by the letter sent by the post. A may revoke his proposal at any time before, at the moment. कौन सा moment? When post has letter of acceptance but not afterwards. यानी afterwards में रिवोक नहीं किया जाएगा जब तक आपने लेटर वगैरह पोस्ट किया है. इन द ड्यूरेशन अगर आप चाहो तो रिवोक कर सकते हो. बी मे रिवोक हिज एक्सेप्टेंस एट एनी टाइम बिफोर और एट द मोमेंट व्हेन द लेटर कम्युनिकेटेड रीचेस ए बट नॉट आफ्टरवर्ड. और वहाँ पर जैसे ही ए को लेटर पहुँचता है हम ऐसा मानते हैं कि रिवोकेशन हो चुकी है. ओके, सो these are the some rules related to revocation. तो revocations जो है वो होते कैसे हैं? That is revocation how made. अभी हम कब से पढ़ रहे हैं revocation, proposal and acceptance. Proposal and acceptance तो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं. revocation क्या होता है? So revocation कैसा होता है? कोई भी प्रपोजल रिवोक कंसिडर किया जाता है बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस. फर्स्ट मोड, पहला तरीका, दैट इज़ अगर आप नोटिस देते हो सामने वाले को तो नोटिस के थ्रू हम रिवोकेशन कर सकते हैं. सो बाय द कमीशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजल टू द अदर पार्टी, ऐसा माना जाएगा कि रिवोकेशन हो गया. बाय द लैप्स ऑफ टाइम, लैप्स ऑफ टाइम समय खत्म होने के बाद, prescribed in such a proposal for its acceptance, और if no time is so prescribed, अगर कोई टाइम ही नहीं बताया गया है तो फिर क्या होगा? the lapse of a reasonable time होगा without communication of acceptance. यानी कि टाइम लैप्स हो गया, एक्सेप्टेंस तो हुआ नहीं, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन भी नहीं हुआ और क्या हुआ? सब कुछ वेस्ट हो गया. By the failure of acceptor to fulfill a condition precedent, by the failure of acceptor to fulfill a condition precedent to acceptance, or by the death of insanity of the proposer. जिसने प्रपोज किया था, जिसने प्रपोजर दिया था, अगर उसी की डेथ हो गई तो. सो इन द केस ऑफ इंसैनिटी, सॉरी, बाय द डेथ ऑफ इंसैनिटी, यानी कि अचानक से डेथ हो जाना प्रपोजर. इफ़ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसैनिटी कम्स टू नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस, इट इज एक्सेप्टेंस के बिफोर आपको उसके दिमाग की स्थिति का ख्याल हुआ, दिमाग की स्थिति का ख्याल अगर हुआ और कि वो इंसेन है तो फिर क्या करेंगे? रिवोकेशन हो जाएगा ना. ऑलरेडी कोई इंसेन है या किसी की डेथ हो गई तो वहाँ पे तो रिवोकेशन हो ही जाएगा. वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैसे कंटिन्यू करेगा? ओके, सो दीज आर द सम रूल्स 4 and 5 का रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल. तो ओवरऑल हमने एक्सेप्टेंस के कुछ प्रोविजंस देखे विथ रिवोकेशन हाउ मेड. ओके, सो 2 और चीज़ें बची हैं. दैट इज़ हम एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं सो दैट फॉर्मली अच्छे से हमको ये चीज़ें याद हो जाए, फिर हम आगे बढ़ें. सो डेफिनेशन पार्ट में हमने डिस्कस किया कि एक्सेप्टेंस क्या हो. सो व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज़ मेड, द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज़ मेड, जिस पर्सन को प्रपोजल दिया गया है, इफ़ ही सिग्निफाइज हिज असेंट, दैट इज़ वो अपनी परमिशन देता है, अपनी असेंट देता है, तो फिर हम मानेंगे कि एक्सेप्टेंस हो गया है. बट असेंट किसको देगा? द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड. प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. जैसे ही एक्सेप्ट होगा प्रपोजल वो प्रॉमिस बन जाएगा. प्रपोजल देंगे किसको? प्रॉमिसर को. प्रॉमिसर प्रॉमिसी को देगा, प्रॉमिसी एक्सेप्ट करके प्रपोजल को प्रॉमिसर को देगा, फिर वो प्रॉमिस बन जाएगा एंड पार्टीज प्रॉमिसर और प्रॉमिसी बन जाएंगे. काउंटर ऑफर में हमने देखा कि काउंटर ऑफर में क्या होता है? व्हेन जो एक्सेप्टर है ही डज नॉट एक्सेप्ट द थिंग्स इन एब्सोल्यूट मैनर, इन अनक्वालिफाइड मैनर, तो फिर हम कहेंगे कि
इट्स अ काउंटर ऑफर, जहाँ पे आप क्वालिफाइड मैनर में, दैट इज़ आप एज इट इज़, जैसा कि ऑफ़र आया था वैसा का वैसा आपने ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया, आपने उसमें वेरिएशंस किए, चेंजेस किए, उसके कंडीशंस को चेंज किया, देन आपने सेम ऑफ़र को चेंजेस के साथ काउंटर ऑफ़र किया ओरिजिनल ऑफरर को। तो इन दिस सिचुएशन में आप जो चेंजेस करके काउंटर ऑफ़र करते हो ओरिजिनल ओनर को, उसे हम काउंटर ऑफ़र ही कहेंगे। सो अंडर सेक्शन इसके लिए क्या है हमारे पास प्रोविज़न ये है कि जो एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनक्वालिफाइड होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। कंडीशंस लगा दिए मतलब चेंज हो गए, मतलब दूसरा ऑफ़र देना पड़ा, इट मीन्स काउंटर ऑफ़र हो गया। ओके, सो देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्ट unless and until the counter proposal is accepted by the original proposer। अब क्योंकि आपने काउंटर ऑफ़र दे दिया है, तो जब तक आपका ओरिजिनल वाला प्रपोजर आपके काउंटर ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर लेता, तब तक आप दोनों के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, एग्जांपल्स भी देखे थे हमने, अब फिर से नहीं देखेंगे, दिस इज द काइंड ऑफ अ शॉर्ट रिवीजन। यस, एसेंशियलिटीज़ ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस, इसमें हमने देखा कि एक वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए किन किन चीज़ों की हमको ज़रूरत है। तो वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए फर्स्ट थिंग वी नीड अ मोड एंड मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस। तो हम कब से पढ़ रहे हैं, दैट इज़ राइटिंग फॉर्म में, ओरल फॉर्म में, बाय कंडक्ट, बाय बिहेवियर, इन चीज़ों के जरिए आप एक्सेप्टेंस को, मोड को प्रिस्क्राइब कर सकते हो। इफ़ मैनर इज़ नॉट प्रिस्क्राइब, तो रीजनेबल मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। अब रीजनेबल मोड ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब जिस भी टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में आपने एंटर किया है, उस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में जिस तरीके का भी एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट किया जाता है, जिस तरीके का भी मैनर एक्सेप्टेंस के लिए फॉलो किया जाता है, हम भी उसी को फॉलो करें। ओके, दैट इज़ इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ अ ट्रेड और बिजनेस। प्रिस्क्राइब्ड मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, अगर प्रपोजर ने मोड ऑफ एक्सेप्टेंस आपको पहले से प्रिस्क्राइब्ड किया है, पहले से बताया है, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्रपोजी कि वो उसी मैनर में एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करे। और अगर उसी मैनर में एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट प्रपोजी नहीं करता है, तो इट इज़ द ऑप्शन ऑफ द प्रपोजर कि वो उसे छोड़ देगा या फिर उसके पीछे पड़ेगा। सो बट अकॉर्डिंग टू लॉ, प्रपोजर में इंसिस्ट टू प्रपोजी, वो इंसिस्ट कर सकता है कि वो उसी मैनर में एक्सेप्टेंस को दे जैसा कि ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड किया गया है। फॉर दैट रीज़न proposal shall be accepted in the prescribed manner and not otherwise। बट अगर वो फेल हुआ ऐसा करने से, तो इट शुड बी सब्जेक्ट टू, सॉरी, इफ़ ही फेल्स टू डू सो, ही एक्सेप्ट द, किसको एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टेंस। अगर ऐसा नहीं कर पाए हम, तो फिर एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ये हम कब से देख रहे हैं, दैट इज़ एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेटेड होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा। सो एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड टू बी कम्युनिकेटेड टू द प्रपोजर। इफ़ देयर इज़ नो कम्युनिकेशन, देन वी कंसिडर देयर इज़ नो एक्सेप्टेंस। इसके लिए एक केस लॉ भी हमने देखा, दैट इज़ बॉर्डिगन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे। नेक्स्ट वी हैव अ साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ये भी हमने देखा कि अगर आप चुप रहते हो किसी भी ओरल या राइटिंग फॉर्म में, किसी भी तरीके के कंडक्ट या बिहेवियर को जस्टिफाइड नहीं करते हो, तो कोर्ट ऐसा मानेगी कि साइलेंस डज नॉट अमाउंट्स टू डिस्क्रिप्शन। तो साइलेंस क्या करेगा, डज नॉट अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। तो आप जो चुप हो, इससे क्या होगा, एक्सेप्टेंस कंसिडर नहीं किया जाएगा और हम अपने काम में प्रोसीड हो जाएंगे आगे, और जो साइलेंट है वो साइलेंट ही रहेगा, क्योंकि साइलेंट रहना तो एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल इज एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑल द टर्म्स ऑफ द ऑफर। अगेन इट इज़ अ वेरी सिंपल, अगर आप किसी ऑफ़र को या किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आप इंडिपेंडेंटली उसमें से जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें से आप सिर्फ एक पॉइंट को ले रहे हो एंड ऑल अदर पॉइंट्स पे आप एक्सेप्टेंस आपकी नहीं दे रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल इज एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ ऑफर। तो ऑफ़र के साथ जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आपको क्या करना पड़ेगा, सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
एक्सेप्टेंस मस्ट बी ऑफ अ सर्टेन पर्सन। जैसा कि हमने प्रीवियस कुछ एग्जांपल्स में देखा था कि जो एक्सेप्टेंस का ऑफ़र होता है वो पब्लिक इन लार्ज होता है, जनरल कैटेगरी का होता है। दैट इज़ एक्सेप्टेंस मस्ट बी बाय सर्टेन पर्सन। बट ऑफ़र भले ही जनरल कैटेगरी का क्यों ना हो, इट्स लाइक पैम्पलेट में हो, न्यूज़पेपर में हो, कहीं भी हो, पूरे इंडिया में हो, बट एक्सेप्टेंस तो कोई एक ही करेगा ना। तो फिर क्या होगा, एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल इज एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल द टर्म। या तो सारा तन, या तो क्या करेंगे, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, या फिर नहीं लेंगे। एक्सेप्टेंस मस्ट बी सर्टेन पर्सन हो गया। ऑफर लैप्स आफ्टर द लैप्स ऑफ अ रीजनेबल टाइम। एक रीजनेबल टाइम ख़त्म होने के बाद आपका ऑफ़र भी क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है। मतलब कि अब आप ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो फिर आपको एक्सेप्ट करने के लिए कम्युनिकेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ऑफ़र का टाइम जो है वो लैप्स हो चुका है। तो नाउ यू आर टाइम बार। नेक्स्ट वी हैव एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द ऑफर इज़ विदड्रॉन और इज़ रिवोक्ड। ऑफकोर्स कॉमन सेंस की बात है कि एक्सेप्टेंस आप कब दोगे, बिफोर ऑफर इज़ विदड्रॉन और रिवोक। एक बार अगर ऑफ़र विदड्रॉ हो गया या फिर रिवोक हो गया तो क्या हम एक्सेप्टेंस दे सकते हैं? विदड्रॉन और रिवोक होने के बाद ऑफ़र तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो ऑफ़र एग्जिस्ट ही नहीं करता उसे आप कैसे एक्सेप्ट करोगे? सो दैट्स एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर ऑफर इज़ विदड्रॉन और रिवोक। नहीं तो उसके पहले ही क्या होगा, आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी चली जाएगी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियलिटीज़ की। ओके, दीज आर द सम पॉइंट्स रिलेटेड टू एसेंशियलिटीज़ ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। विद दिस हमने सेक्शन 4 और 5 भी देखा कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल कब कंप्लीट होता है। ओके, सो इसका भी छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर से आगे का प्रोसीड करेंगे। इट सेज कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट्स द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट्स व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom it is made। जिसके लिए प्रपोजल बनाया गया है, जैसे ही उस व्यक्ति को उस प्रपोजल के बारे में नॉलेज मिलती है, वैसे ही मान लिया जाएगा कि वो प्रपोजल के बारे में कम्युनिकेशन हो चुकी है, दैट इज़ कम्युनिकेशन मिल चुकी है। अगर हम एक्सेप्टेंस की बात करें तो एज अगेंस्ट द प्रपोजर के लिए एक्सेप्टेंस कब होता है, व्हेन इट इज़ पुट इन द कोर्स ऑफ अ ट्रांसमिशन। जब कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन मतलब जब ट्रैवल करने के लिए बाय पोस्ट में या कहीं पे भी दे दिया गया है, व्हेन इट इज़ पुट इन द कोर्स ऑफ अ ट्रांसमिशन टू हिम एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्ट। और अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब होगा, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजल। जैसे ही प्रपोजल के नॉलेज में आता है, वैसे ही एक्सेप्टर के लिए भी क्या कर लिया जाएगा, एक्सेप्टेंस हो चुकी है ऐसा कम्युनिकेट कर लिया जाएगा। सो कम्युनिकेशन ऑफ अ रिवोकेशन कब पूरा होता है, ये भी पढ़ा हमने। एज अगेंस्ट द पर्सन टू whom it is made, उस व्यक्ति के अगेंस्ट में जिसके लिए बनाया गया है, व्हेन इट इज़ पुट इन टू द कोर्स ऑफ अ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू whom it is made, so as to out of the power of the person from bodies। so against the person who makes it, तो जिसके अगेंस्ट में ये बनाया गया है, वहाँ पे भी आपको क्या करना है, जब पुट इनटू द कोर्स ऑफ अ ट्रांसमिशन, जैसे ही वो ट्रांसमिशन के लिए पुट करता है, वैसे ही हम कंसिडर कर लेंगे कि क्या हो गया, मिल गई नोटिस, इंफॉर्मेशन मिल गई। अगेंस्ट द पर्सन टू whom it is made when it comes to his knowledge, और जिसके लिए अगेंस्ट में बनाया गया है वहाँ का कब कंसिडर किया जाएगा, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज, जब वो उनके नॉलेज में आ जाएगी तब। दीज आर द सम एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, रिवोकेशन और एक्सेप्टेंस। रिवोकेशन के हमने मोड्स भी देखे थे, दैट इज़ बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस। आप अपने प्रपोजल को रिवोक कर सकते हो नोटिस देकर, लैप्स ऑफ टाइम, या फिर अगर एक बार टाइम ख़त्म हो गया, टाइम लैप्स हो गया, फिर भी हम क्या कर सकते हैं, रिवोकेशन कर सकते हैं प्रिस्क्राइब्ड मैनर में। अगर प्रपोजल में पहले से प्रिस्क्राइब्ड था एक्सेप्टेंस का टाइम, लिखा हुआ था कि आप मेरा घर, मैं आपको अपना घर 10,000 में बेच रहा हूँ,
अगर आप लेना चाहते हैं तो गिव योर एक्सेप्टेंस विद इन फॉलोइंग 10 days या विद इन नेक्स्ट 10 days। तो अगर आप 10 days में आपकी एक्सेप्टेंस नहीं देते हो तो ए इज़ नॉट बाउंड बाई यू, तो वो BCDE किसी को भी ये ऑफ़र दे सकता है। अगर लैप्स ऑफ टाइम हो गया, जो टाइम आपको अलॉट किया है, तो नेक्स्ट क्या है, बाय द डेथ ऑफ इंसैनिटी। बाय द डेथ ऑफ इंसैनिटी जो प्रपोजर है, इफ़ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिकम एक्सेप्टेड। वैसे भी जिसकी डेथ हो गई है इंसैनिटी की, इन केस ऑफ अ डेथ एंड इंसैनिटी, तो इस केसेस में क्या ही कर सकते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सो इफ़ द फैक्ट ऑफ हिज ये डेथ और इंसैनिटी कम्स कहाँ, टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर, then it becomes acceptance. Okay, these are the some modes of revocation how made, that is अगर आपको revocation करना है तो वो कैसा होगा। So these are the some rules related to acceptance से related ये rules थे। अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आफ्टर आवर ब्रेक के बाद 10:30 को हम नेक्स्ट सेशन कंडक्ट करेंगे, जिसमें हम कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ टू कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे, इंक्लूडिंग माइनर्स प्लस इंक्लूडिंग फर्दा नशीन वुमेन, इंक्लूडिंग जनरल और बेसिक लॉ, दैट इज़ हु आर द पार्टीज़ हु आर एलिजिबल टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये टॉपिक हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, कैपेसिटीज़ ऑफ अ पार्टीज टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, किसकी क्या कैपेसिटी है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की। ओके, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो वी आर डन विद द ऑलमोस्ट काइंड ऑफ आफ्टर टुडे और एटलीस्ट टुडे वी आर गोइंग टू फिनिश विद द 2 or 3 chapters. Okay, so just have a revision of the same, and yes, we will continue from our next lecture only, that is capacity of parties to contract. तो कौन से पार्टीज़ के पास कैपेसिटी है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की, कौन सी क्वालिफाइड है, कौन सी डिसक्वालिफाइड है, इसका जिक्र मैं आपको देती हूँ हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो दिस लेक्चर और दिस सेशन आई एम एंडिंग हियर ओनली। नेक्स्ट वाले में कंटिन्यू करते हैं कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ के साथ।